Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, food making and plants. Learning objectives, the structure of a leaf, the process of photosynthesis and the interdependence between plants and animals. Plants are living things, they need food and water as animals do. However, they are different from animals in one very important way, that is, plants can make food on their own, while animals cannot. Animals depend on plants for food. Most plants have leaves. Leaves are usually green in color. What makes the leaves look green? The leaves contain a wonderful substance called chlorophyll. It is the chlorophyll that makes the leaves look green. Leaves come in all sorts of shapes and sizes, large and small, thick and thin. In fact, you can tell quite a lot about a plant and where it grows just by looking at its leaves. Plants living thing है, you know that very well. उनको खाने की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, जैसे कि एनिमल्स को ज़रूरत होती है. बट एक चीज़ है जो एनिमल्स से डिफरेंट है, वो ये है कि प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं, राइट? जबकि एनिमल्स अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं. तो ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं उनके पास लीव्स होती हैं एंड लीव्स आर ग्रीन इन कलर. बट इनका कलर ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि लीव्स में एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, एंड इस क्लोरोफिल की वजह से ही लीव्स का कलर होता है आपका ग्रीन. अब लीव्स सारी सेम साइज और सेम शेप्स में नहीं मिलती हैं. कुछ बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है, कुछ थिक और थिन होती है. Do you know most leaves are broad and flat to catch maximum sunlight? The world's longest leaves are those of the raffia palm, which grow up to 25 meter long. ज़्यादातर जो leaves होती हैं वो flat and broad होती हैं जिससे कि maximum sunlight को catch कर सके. And world की सबसे जो लंबी leaves हैं वो है आपकी raffia palm जो कि 25 meter long तक grow करती है. Parts of a leaf. Look at a leaf. The flat, broad part of the leaf is called the leaf blade or lamina. The leaf is attached to the stem with a stalk called petiole. There is a main vein running along the center of the leaf. It has a number of side veins. The main vein is called the midrib. These veins carry water and minerals to all the cells of the leaf. They also carry food from the leaf to other parts of the plant. On the lower surface of the leaf are thousands of tiny pores called stomata. Singular, stoma. The leaves take in carbon dioxide and gives out oxygen and excess water through the stomata. अच्छा, लीव्स के पार्ट आई एम श्योर आपने लास्ट क्लास में भी पढ़े होंगे, राइट? देखिए लीफ आपकी कैसी होती है, ये लीफ का स्ट्रक्चर है एंड ये आपका जो फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड लीफ ब्लेड या फिर लेमिना. ओके, अब आपकी जो लीफ होती है वो स्टेम के साथ आपकी क्या होती है, अटैच होती है एक स्टॉक के साथ जिसे हम कहते हैं पेटियोल. अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिस इज द पेटियोल. नेक्स्ट देयर इज अ मेन वेन जो इस तरह से होती है, उसके बाद साइड वेन्स होती हैं आपकी, राइट? एंड आपकी जो मेन वेन होती है इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिडरिब. ओके, दिस इज योर मिडरिब. अब इसके बाद ये वेन्स का काम क्या होता है, ये वाटर एंड मिनरल्स को कैरी करती हैं, राइट? इसके अलावा ये फूड को भी कैरी करती है लीफ से प्लांट के दूसरे पार्ट तक, राइट? अब लीफ के अंडर सरफेस पे, लोअर सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा. एंड स्टोमेटा का काम क्या होता है, गैसेस को एक्सचेंज करना. Functions of a leaf. A leaf performs the following functions. It makes food for the plant. Stomata in a leaf help the plant to breathe. Plants like cabbage, spinach, mint and lettuce store food in their leaves. We eat these leaves as food. Leaves of some plants like tulsi and mint are used as medicines. अच्छा, लीफ के बहुत सारे फंक्शंस हैं. सबसे पहले तो खाना बनाती है प्लांट के लिए, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन. स्टोमेटा जो आपकी लीफ में होता है वो ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं प्लांट को. आपके कुछ प्लांट्स होते हैं लाइक कैबेज, स्पिनच, ये सारे आपकी लीव्स ही तो हैं जिन्हें आप खाते हैं, राइट? एंड जैसे आपकी तुलसी या मिंट है, ये आपकी क्या है, इन प्लांट्स की लीव्स को हम एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं. डू यू नो व्हेन वी ईट फ्रूट्स, ब्रेड और केक्स द स्वीटनेस कम्स फ्रॉम शुगर मेड बाय फोटोसिंथेसिस. All the world's plant together make about 150 million tons of food starch every year during photosynthesis. आप जैसे फ्रूट्स खाते हैं, ब्रेड्स या फिर जो केक्स खाते हैं, तो जो स्वीटनेस होता है जो शुगर से आता है एक्चुअल में किससे बना है, फोटोसिंथेसिस से. एंड वर्ल्ड का जो प्लांट है लगभग वो फोटोसिंथेसिस में हर साल कितना खाना बनाते हैं, 150 मिलियन टन्स. Food making and leaves photosynthesis. You know that green leaves contain chlorophyll. Chlorophyll is necessary for making food. Leaves use sunlight, water and carbon dioxide to make food. Leaves absorb sunlight through chlorophyll. They get water from the stem which is absorbed by the roots. Leaves take in carbon dioxide from the atmosphere through their stomata.
The process of food making in leaves of plants is called photosynthesis. Photo means light, synthesis means to make. So to make food in the presence of sunlight is called photosynthesis. During this process, plants give out oxygen, the gas which all living things need to breathe in. Since leaves make food, they are called the food factories of the plant or powerhouse of the plant or kitchen of the plant. Plants cannot make their food in the absence of sunlight. So they do not make food at night. In fact, they give out carbon dioxide at night. That is why it is advised not to sleep under a tree at night. अब देखिए फूड मेकिंग जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. देखिए फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, राइट? उनमें लीव्स आपका क्लोरोफिल होता है, राइट, जिसकी वजह से वो ग्रीन होते हैं. क्लोरोफिल बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है फूड बनाने के लिए, बिकॉज क्लोरोफिल का काम क्या होता है? सनलाइट को ट्रैप करना. ओके, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है. इसके बाद प्लांट्स को ज़रूरत होती है सनलाइट की, वाटर की एंड कार्बन डाइऑक्साइड की अपना खाना बनाने के लिए. एंड दिस प्रोसेस इज नोन फोटोसिंथेसिस, राइट? आपके लीव्स खाना बनाते हैं, इसीलिए लीव्स को कहा जाता है फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट या फिर पावर हाउस ऑफ द प्लांट या फिर किचन ऑफ द प्लांट. सनलाइट नहीं होगी तो क्या अपना प्लांट्स अपना खाना बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं. इसीलिए प्लांट्स जो हैं आपके, जैसे कि रात को खाना नहीं बनाते हैं, ये राइट में आपके कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करते हैं. इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए. The process of photosynthesis can be represented in a simple way. देखिए photosynthesis को हम कैसे represent कर सकते हैं? Carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll gives sugar plus water plus oxygen. Leaves make food in the form of sugar or starch. It is like a sweet juice called sap. The sap is carried to the stem through the veins. The stem carries it to different parts like roots, buds, flowers and fruits. लीव्स जो अपना खाना बनाते हैं शुगर या स्टार्च की फॉर्म में. ये एक स्वीट जूस होता है जिसे हम बोलते हैं सैप. ओके, एंड ये जो सैप होता है ये आपके स्टेम तक इसको कैरी किया जाता है थ्रू वेन्स. हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड? फूड इज यूज बाय द प्लांट्स इन नंबर ऑफ वेज. Some of the food is used for the growth of stems, new leaves, flowers and fruits. Some of the food is used to build new cells at the site of injury of the plant. If a branch or a leaf is broken or plucked, the plant repairs itself with the new cells. The extra food is stored in the leaves, stems and roots. We eat that part of the plant which has food stored in it. अब plants किस तरह से खाना जो है यूज़ करते हैं? सबसे पहले तो उनकी ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, लाइक जैसे स्टेम की ग्रोथ है या न्यू लीव्स, फ्लावर्स या फ्रूट्स के लिए. इसके बाद कई बार क्या हो जाता है, नए न्यू सेल्स बनाने होते हैं उनको, राइट? जैसे कि प्लांट की किसी पार्ट में कोई इंजरी होगी, लाइक जैसे कि ब्रांच है या लीफ ब्रोकन हो गई या किस प्लक कर दिया गया, तो प्लांट उसको खुद से ही रिपेयर करता है न्यू सेल से. एंड एक्स्ट्रा फूड जो होता है वो लीव्स की फॉर्म में स्टोर हो जाता है या स्टेम या रूट्स, और उसके बाद इसे हम कंज्यूम करते हैं. Photosynthesis in some unusual plants. Some plants do not have leaves while some plants do not have green leaves. How do these plants make food? Let us learn about some such plants. Have you seen crotons? They have dark red leaves. These leaves have chlorophyll, but a red substance hides its green color, so they can make food by the usual process of photosynthesis. अच्छा देखिए, कुछ plants होते हैं जिनकी leaves नहीं होती है, किन्हीं और कुछ ऐसे plants होते हैं जिनकी green leaves नहीं होती, तो कैसे खाना बनाते हैं? सबसे पहले example है croton leaves. ये आपका क्रोटन, इसकी लीव्स होती है, इसमें रेड कलर की आपको नजर आती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसमें क्लोरोफिल है. इसमें क्लोरोफिल भी है बट ये हाइड हो जाता है ये ग्रीन कलर, तो इसलिए यूजुअल प्रोसेस से ही बनाते हैं बिकॉज इट हैज क्लोरोफिल. सम प्लांट्स लाइक कैक्टस हैव नो लीव्स. वेयर do they make their food? Such plants have fleshy green stem which have chlorophyll in them. The process of photosynthesis takes place in their stems. अब कैक्टस आपने देखा होगा, उसकी लीव्स नहीं होती, लीव्स एक्चुअली आपके स्पाइन में रिड्यूस हो जाते हैं, राइट? तो खाना कहाँ बनाते हैं? इनकी ग्रीन फ्लैशी स्टेम होती है जहाँ पे ये खाना बनाते हैं. Plants like mushroom and molds do not have chlorophyll, so they cannot make their food. They grow on dead and decaying plants and animals and get their food from them. Many people do not consider mushrooms and molds as plants. अब प्लांट जैसे आपके मशरूम या मोल्ड्स हैं, ये इनमें क्लोरोफिल नहीं होता तो अपना खाना नहीं बना सकते, तो ये क्या करते हैं, ये किसी डेड या डीकेइंग प्लांट या एनिमल्स पे रहते हैं और वहाँ से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं. और बहुत सारे लोग मशरूम और मोल्ड को प्लांट भी कंसिडर नहीं करते हैं. Activities. Let us perform some activities related to photosynthesis. Does a green leaf have starch? क्या green leaf में starch होता है? तो check करते हैं. Pick a fallen green leaf of a healthy plant. Bleach the leaf
by first boiling it in water and then boiling it in alcohol. Wash it in cold water, add a few drops of iodine. अब आपको क्या करना है, एक हेल्दी प्लांट की फॉलन लीफ को लेना है, उसको सबसे पहले आप वाटर में बॉईल करेंगे, फिर उसको अल्कोहल में बॉईल करेंगे, देन उसको कोल्ड वाटर से आप वॉश करेंगे और उसके ऊपर आप डालेंगे कुछ ड्रॉप्स आयोडीन की. Conclusion: when you add iodine to the bleached leaf, it turns blue-black. This shows that starch is present in a green leaf. जैसे आप उसमें आयोडीन डालेंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा blue-black में. और blue-black का मतलब क्या है, कलर आता है, that means इसमें starch present है. Note: starch turns blue-black when iodine is added to it. ये बात हमेशा आप याद रखेंगे. starch जो है blue-black हो जाता है जब आयोडीन इसमें डाला जाता है तो. Activity 2. Is sunlight needed for photosynthesis? Take a healthy plant and keep it in the dark for about 24 hours. Cover one of its leaves partly with a strip of black paper. Keep the plant out in the sunlight for 4 to 5 hours. आपको एक हेल्दी प्लांट लेना है, पॉटेड प्लांट, उसको आप डार्क में रख देंगे 24 आवर्स के लिए. अब आप क्या करेंगे, एक लीफ लेंगे और उसको पार्टली कवर कर देंगे आप ब्लैक पेपर से, एंड देन उस प्लांट को फिर से आप 4 से 5 घंटे के लिए क्या करेंगे, उसे आप सनलाइट में रख देंगे. ब्लीच द कवर्ड लीफ बाय फर्स्ट बॉइलिंग इट इन वाटर एंड देन बॉइलिंग इट इन अल्कोहल. वॉश इट इन कोल्ड वाटर, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन. अब आपको क्या करना है, आपने जो कवर्ड लीफ थी उसको पहले बॉईल करना है वाटर में, देन अल्कोहल में, देन वॉश करना है कोल्ड वाटर से, एंड देन उसमें आप फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे आयोडीन की. Now, what will happen? Conclusion: the part of the leaf that was covered with black paper doesn't turn blue-black. This part of the leaf does not contain starch because it did not get any sunlight. So, sunlight is needed for photosynthesis. अब क्या कंक्लूजन निकला, देखिए हमने उस लीफ को कवर कर दिया था ब्लैक पेपर से, तो जो पार्ट कवर्ड था वो आपका ब्लू ब्लैक नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि उसने खाना ही नहीं बनाया, क्योंकि आपका उसको सनलाइट पे तो रखा था बट वो कवर्ड था. ठीक है, तो इससे क्या शो होता है कि सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, इज क्लोरोफिल नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस? क्या क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है? तो चलिए देखते हैं. टेक अ कॉलस लीफ, ड्रॉ इट्स आउटलाइन ऑन अ शीट ऑफ पेपर, मार्क द ग्रीन एंड नॉन ग्रीन areas. Bleach the leaf by first boiling it in water and then boiling it in alcohol. Wash it in cold water and add a few drops of iodine. With the help of the paper outline, find out which part of the leaf turn blue black. आपको एक लीफ लेनी है, कॉलस लीफ, राइट. कॉलस लीफ में क्या होता है, कुछ पार्ट आपका ग्रीन होता है जबकि कुछ पार्ट आपका नॉन ग्रीन होता है. उसको मार्क कर लेना है पेपर में, राइट. उसके बाद आपको सेम प्रोसेस अपनाना है. सबसे पहले आप लीफ को क्या करेंगे, बॉईल करेंगे वाटर में, देन फिर अल्कोहल में, देन वॉश करेंगे कोल्ड वाटर से, फिर आयोडीन की आप कुछ ड्रॉप्स डालेंगे. उसके बाद आप ये जो अपने पेपर आउटलाइन बनाया था उसकी हेल्प से आप देखेंगे कि क्या है. देखिए यहाँ जहाँ ग्रीन पार्ट था वहाँ पे ब्लू ब्लैक हो गया जैसे ही हमने उसमें आयोडीन डाला, और जो आपका नॉन ग्रीन प्लांट था वो एज इट इज़ है. So, इसका conclusion क्या है? The parts of the leaf which are green in color show the presence of a starch. This shows that the green substance that is chlorophyll is needed for photosynthesis. तो वो पार्ट जहाँ पे आपका ग्रीन आया है, इसका मतलब वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट था. इसका मतलब क्लोरोफिल का होना बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए. Energy flow in living beings. The ultimate source of energy on the earth is sun. Green plants trap the sun's energy to make food during photosynthesis. This energy is passed on to animals and human beings when they eat the food prepared by plants. This way, energy flows from the sun to plants and then to animals and human beings. Let us learn the energy flow with the help of a food chain. A food chain shows how energy passes from one living being to another. Below are given two simple food chains. अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी अर्थ में क्या है, सन. ऑलवेज रिमेंबर दैट. ठीक है, ग्रीन प्लांट जो है सन की एनर्जी को ट्रैप करते हैं, देन अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. देन ये जो एनर्जी है वो पास होती है एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में, जब वो प्लांट्स को खाते हैं, राइट. तो इस तरह से जो एनर्जी फ्लो होती है सन टू प्लांट्स एंड देन टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग. फूड चेन ऑन लैंड. देखिए फूड चेन है आपकी, प्लांट को कंज्यूम किया डियर ने, डियर को कंज्यूम किया लायन ने. फूड चेन इन वाटर. देखिए वाटर प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे वाटर इंसेक्ट को कंज्यूम करेगा फ्रॉग, एंड देन फ्रॉग को कंज्यूम करेगा स्नेक. In the food chain 1, the deer eats plants to get energy. The deer itself becomes the food of the lion. So the lion gets its energy from the deer. Thus energy and nutrients of the plants first pass to the deer and then to the lion. Similarly, in the food chain 2, water insects feed on plants to get energy. The insects become food of the frog. The frog itself becomes the food of the snake. Thus energy and nutrients from the plants first go to the water insect, then to the frog and finally to the snake. तो देखिए दोनों फूड चेन से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, राइट. जैसे कि प्लांट से डियर में, देन डियर से लायन में. सेम इस फूड चेन में भी ऐसे ही होगा.
Interdependence of plants and animals. Animals and plants depend on each other for many things. Animals, including human beings, need food to eat and oxygen to breathe. They get these from plants. Animals and plants एक दूसरे पे डिपेंडेंट है बहुत सारी चीज़ों के लिए. Animals को खाने की ज़रूरत होती है एंड ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ये ज़रूरत पूरी कौन करते हैं? प्लांट्स. Plants need carbon dioxide to make food. They get this gas when animals and human beings breathe out carbon dioxide. अब plants को carbon dioxide की ज़रूरत होती है, और ये ज़रूरत पूरी कौन करते हैं? Animals and human beings. Balance in nature. Imagine what would happen if there is a sudden increase in the number of animals on the earth. Plants would not be able to supply enough food and oxygen to all the animals. Similarly, if there is a sudden increase in the number of plants, animals would not be able to supply enough carbon dioxide to all the plants. So a sudden increase or decrease in the numbers of either plants or animals would disturb the balance in nature. To maintain a balance in nature, we have to protect both plants and animals' life. These various programs have been started to protect wild animals, like setting of forests, reserves and sanctuaries. Programs like Van Mahotsav promote the planting of trees and make people aware of the harmful consequences of cutting trees. अब देखिए क्या होगा अगर एकदम से नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ जाएंगे अर्थ पे, तो प्लांट्स क्या होगा? प्लांट्स इनफ फूड और ऑक्सीजन नहीं सप्लाई कर पाएंगे. इसी तरह से अगर एकदम से इंक्रीज हो गया प्लांट्स में, तो क्या होगा? एनिमल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं सप्लाई कर पाएंगे सारे प्लांट्स को. सो एक एकदम से अगर सडन इंक्रीज या डिक्रीज होता है, चाहे प्लांट्स की नंबर ऑफ प्लांट्स में या फिर एनिमल्स में, तो उससे जो नेचर का बैलेंस है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा. तो मेन इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए हमें प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ दोनों को ही प्रोटेक्ट करनी चाहिए. बहुत सारे प्रोग्राम सेट किए गए हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि फॉरेस्ट रिजर्व सेट किए जाते हैं, सैंक्चुरीज हैं, एंड इसी तरह से वन महोत्सव प्रोग्राम है जहाँ पे लोगों को एनकरेज किया जाता है कि वो ट्रीज प्लांट करें. लेट अस रिमेंबर, all green leaves contain chlorophyll. Green leaves use sunlight, water and carbon dioxide to make food. The process of food making in plants is called photosynthesis. Leaves are called the food factories of the plant. Plants and animals depend on one another for their survival. There must be a balance between plants and animals in nature. The source of all energy on the earth is the sun. A food chain shows how energy passes between living things. जितनी भी ग्रीन लीव्स होती हैं उनमें क्लोरोफिल होता है. ग्रीन लीव्स जो है सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का यूज़ करते हुए खाना बनाती है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. लीव्स को कहा जाता है फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स बिकॉज दे मेक फूड फॉर द प्लांट. प्लांट्स एंड एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, एंड जो सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ में वो आपको पता है सन है. एंड एक फूड चेन शो करती है किस तरह से एनर्जी जो है लिविंग थिंग्स के बीच में पास होती है. चिल्ड्रन, आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा, एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.